टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लेट स्टार्ट नीट प्रिपरेशन। टुडेज टॉपिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सेल एंड फीचर्स, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, लाइकेंस, वायरस एंड ड्रग्स। दीज आर द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 11 चैप्टर 2 बायो से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। सो शुरू करते हैं, देखते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दिस वाज गिवन बाय द R.H. Whittaker। ये R.H. Whittaker थे साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट who have given this 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उससे पहले एक और साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, who has tried to divide, और उनका जो किंगडम क्लासिफिकेशन था वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। He has divided all the organisms of this world in 2 category, either they are plant or animals। उनके कुछ बेसिस से किस बेसिस पर उन्होंने डिवाइड किया, whether the organism have red blood or do not have red blood। You all know that animals mostly have red blood, but when we compare plants, so they do not have red blood but they have chlorophyll, green color pigment। And what are the salient features of these 5 kingdom classification? This is 1, 2 and 3. Mainly we will learn about these 3, 1, 2 and 3. The fourth one is plant kingdom, and 5th one is animals, that is different, animal। So आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं फर्स्ट किंगडम मोनीरा के बारे में। As you all know that kingdom Monera is a group or a kingdom only for bacteria। बैक्टीरिया वर्ल्ड में जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हो, किसी भी साइज के हो, किसी भी हैबिटेट में पाए जाते हो, all are studied under only one kingdom, that is kingdom Monera। सिर्फ एक ही किंगडम में पढ़े जाएंगे, किंगडम मोनीरा। बेसिकली और इन ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑल बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। वन इज आर्के बैक्टीरिया, अनदर इज यू बैक्टीरिया। So there are some special characters। आर्के बैक्टीरिया कुछ स्पेशल बैक्टीरिया हैं। These are the common bacteria। आर्के बैक्टीरिया को स्पेशल इसलिए कहा जाता है because they are found out in different harsh habitat conditions। जैसे कि उबलते हुए पानी में, boiling water, in too much saline condition, जहाँ नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उस झील में भी ये पाए जाते हैं। So हेलोफिल्स कहते हैं, they are हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, as well as some archaebacteria are methanogens। They are present in ruminant or the ruminant gut। जो काउ और बफेलो है, उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, they are methanogens। That's why they release methane gas। Methane gas is especially related to cow dung, that is गाय या भैंस के गोबर से जो गैस रिलीज होते हैं, that is methane gas। And methane gas is released by the methanogen bacteria due to digestion of cellulose। So example, methanogens, another one halophils, another one is thermoacidophils, and these are the U bacteria, or they can be called as true bacteria। True bacteria because they have general simple cell wall। The cell wall of the bacterial cell is made up of glycocalyx। If the layer of glycocalyx is one
then it will not able to retain the stain. But when the layer around the cell wall is more than one or two layers, then the bacteria will be called as gram positive, because it is able to retain the stain. वो स्टेन को इजीली रिटेन करता है, और whenever we try to observe a slide under the microscope after staining, it will show the colored stained bacteria that we called as gram positive bacteria, and another which do not receive stain, they are called as gram negative bacteria. So true bacteria, they are useful for making curd, making vaccines, making different type of medicinal products, and they are used to synthesize different chemicals. Some bacteria are very useful because they are regularly used to prepare different food diets, like lactic acid bacteria are used to prepare curd from milk, and streptococcus bacteria is used to prepare streptokinase enzyme, which is very useful. And next one, so let's learn about the another bacteria is cyanobacteria. One more example that we called as blue green algae. Blue green algae. Blue green algae, that is name is algae, but it is studied under kingdom Monera. It is generally a bacteria. Due to its different ability, it is able to synthesize food in the form of glucose by the help of process photosynthesis. You have already studied about, आपने जैसे पहले भी सुना होगा, इसके बारे में जाना होगा कि कुछ बैक्टीरिया केमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक bacteria are chemosynthetic, autotrophic, and most of the bacteria are saprotrophic. So those bacteria which are able to synthesize their food by the help of chemicals, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एनवायरनमेंट से केमिकल लेकर के अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। उन केमिकल्स में सल्फर की गैसेस, सल्फर या हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है, SO2 हो सकता है, SO3 हो सकती है, उसके अलावा नाइट्रोजन हो सकती है, फ्री नाइट्रोजन और नाइट्राइट नाइट्रेट की फॉर्म में हो सकती है। बैक्टीरिया, व्हेन बैक्टीरिया आर एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड by the help of chemicals or by the help of gases, they are called as chemosynthetic bacteria. Some bacteria are called autotrophic. Definitely they have chlorophyll. The chlorophyll, you all know that, is able to trap the sunlight and can synthesize glucose. And this is saprotrophic, a mode of nutrition in bacteria when they do not synthesize their food but they act as a parasite and they take their food from dead and decaying matter. जब किसी गलती या सड़ती हुई वस्तु से बैक्टीरिया अपना भोजन लेते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक और सेप्रोट्रोपिज्म कहते हैं। Let's learn about kingdom Protista. So all these bacteria are prokaryote. First आपको ये समझना होगा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोकार्योटिक होते हैं, means do not have nuclear membrane, or we can say proper nucleus, do not have true nuclei. They do not have true nucleus.
बैक्टीरिया जितने भी हैं सभी के सभी प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है क्रोमोसोम और जेनेटिक मटेरियल जो है इट इज स्प्रेडेड इन द साइटोप्लाज्म। और वी कैन से दैट कि उन बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी बैक्टीरिया के पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। These all are single cell organism. They all are eukaryotic. Eukaryotic cell have well proper nucleus or well developed nuclear membrane, and mostly all are mostly marine होते हैं। They are present in marine habitat, that's why they are called marine. Next one. Okay, now its classification की बात करते हैं। 1, 2, 3, 4 and 5. So the kingdom Protista is basically divided in 5 categories: Chrysophytes, Dinoflagellate, Euglenoid, Slime mold and Protozoans. तो ये 5 कैटेगरी हैं: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। आपने इसके बारे में एनसीईआरटी चैप्टर 2 में भी पढ़ा होगा। इसके कुछ बेसिक कॉमन कैरेक्टर्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्राइसोफाइट्स ये सभी के सभी जितने में सब प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा कैटेगरी के हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। क्राइसोफाइट्स दोज प्रोटिस्टा और दोज ऑर्गेनिज्म which have show box like shape. Its shape is just like box, so box, which is made up of silica. The four common examples of these are diatoms and golden algae. These diatoms or golden algae जो है, they are present only in marine habitat. When the organism left their external or skeleton, that silica cells deposited, silica exoskeleton deposited and make the marine earth more gritty, which is useful for filtration of syrup. Okay, next one. Dinoflagellate. As the name indicates, dinoflagellate means there are two flagella. One is short and another is long. Dinoflagellate have different type of organisms. This category have different type of organisms which have different colors due to the presence of different pigment in their body. Dinoflagellate इस कैटेगरी में वो प्रोटिस्टा आते हैं जिनके अलग अलग बॉडी कलर्स होते हैं, और बॉडी का कलर डिफरेंट होने का रीजन उनके अंदर पाए जाने वाला पिगमेंट है, और वो पिगमेंट स्पेशल है। उसमें से एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, दैट इज रेड टाइड्स। आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट आर रेड टाइड्स। रेड टाइड्स किसकी वजह से होती हैं, रेड टाइड्स क्यों डेवलप होती हैं, तो यू हैव टू नो द नेम गोनिओलेक्स। ये दिस इज द डायनोफ्लैजिलेट। ऐसा डायनोफ्लैजिलेट है जो जिस स्थान पर और जिस वाटर लेवल में प्रेजेंट होगा, और वेन एवर इट इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी इट मेक्स द टाइड्स रेड, जिसकी वजह से जो पूरी लहर है पानी की वो रेड कलर की दिखाई देती है। इट रिलीज सम टॉक्सिक एजेंट, जहरीले केमिकल्स रिलीज करता है जिससे एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है। सो लेट्स लर्न अबाउट यूग्लिनोइड। एज द नेम इंडिकेट यूग्लिना,
जैसे इसका नेम शो कर रहा है यूग्लिना, सो दिस इज वंस अगेन सिंगल सेल है, यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मेराइन है, बट दिस ऑर्गेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूग्लिना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स. This is special protista because it can do photosynthesis in presence of sunlight, or in absence of sunlight it behave like a heterotroph. It take its food from other small organisms. Euglenoid have protein layer on its body surface which make its body flexible, and the name of that protein layer is called pellicle. आपको वो नेम भी याद रखना होगा, pellicle. So next topic की बात करते हैं slime mold. Slime mold, as you have learned about the or you have listened about the bread molds. So just like that, which is a fungi, but it is protista, a small organism. Okay, so this is slime molds, which is also a single cell organism and eukaryotic cell, and these have some special features which also act as a parasite. Now let's learn about the protozoans. Let's learn about the protozoans. It have 4 different categories: 1, 2, 3 and 4. Flagellate, flagellated, ciliated, flagellated, ciliated, और sporozoans, and one more is there in that is plasmodium related category. No problem in that. You can search the different type of name. This is as a homework: ciliated protozoan, flagellated protozoan, and one is sporozoans. The sporozoan related to one special category. Ciliated and flagellated you have one is amoeboid, which is basically first, no problem in that, amoeboid protozoans. You can easily find out the name as amoeboid in book. The amoeboid, those organisms which have amoeba shape, or all amoeba and entamoeba, all included in amoeboid protozoans category. So these are basically protista. Its subcategory is protozoans, and its subcategory, it means इसका जो थर्ड स्टेज क्लासिफिकेशन है वो ये है. प्रोटोजोन्स कितने तरह का है? 4 तरह का है. अमीबॉइड फर्स्ट वन है, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड देन स्पोरोजोन्स. आपने प्लास्मोडियम के बारे में सुना होगा, इट कॉज मलेरिया. सो दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस स्पोरोजोन्स कैटेगरी. अमीबॉइड, दोस protozoans which have amoeba shape, they have pseudopodia which help in capturing food, and ciliated, those like paramecium, it have cilia all over the body. The cilia help the organism, single cell protistas, to move inside the water. They have food vacuole as well as small contractile vacuole. Flagellated protozoans you have already learned about. So now next come on the next topic, that is fungi. What do you know about the fungi? Fungi क्या है और उनके फीचर्स क्या हैं, ये आपको रिकॉल करना होगा. हो सकता है आपने पढ़ा है और आपको वापस सब याद आ जाए. Let's revise it once again. Maybe unicellular or maybe multicellular. Unicellular, multicellular हो सकती है.
mostly all are saprotrophic. Yes, then we will learn about its classification. हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, फंजाई का क्लासिफिकेशन क्या है. सो लेट्स लर्न अबाउट इट. सो फंजाई के बारे में डिस्कस करते हैं. ऑल फंजाई आर यूनिसेलुलर, सम आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर जिसमें सिर्फ एक ही सेल है, मल्टीसेलुलर जिसमें ज़्यादा सेल है, जो ज़्यादा सेल से मिलकर के बनी है. यूनिसेलुलर फंजाई मीन्स, सिर्फ एक एग्जांपल आपको याद रखना है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स many questions asked from that topic. Unicellular fungi name is yeast. This is commonly called as yeast. Yeast कहते हैं. Yeast कहते हैं. One is a scientific name is there. Yeast का एक और scientific name है. That is Saccharomyces cerevisiae. Yeast is Saccharomyces cerevisiae, scientific name. This yeast is used to prepare bread due to its property to release a large amount of carbon dioxide, due to which bread become fluffy. गुदगुदी होती है, सॉफ्ट होती है ब्रेड ड्यू टू CO2 बबल्स की वजह से. Another one, bread, this Saccharomyces cerevisiae is used in bakery. That's why it is called baker yeast. इसको baker yeast भी कहा जाता है. उसके अलावा इसका यूज बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है. फर्मेंटेशन में यूज होता है. ब्रांडी, विस्की, रम एंड फर्स्ट बेसिकली दे आर फर्मेंटेड एंड देन दे आर प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस. जनरली जो वाइन्स होती हैं, एल्कोहल्स जितना भी तैयार होता है, मोस्टली इज परफॉर्म और प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ Saccharomyces cerevisiae. तो फंजाई का क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है आपको. ये ऑल आर सेप्रोट्रॉफिक. दे नेवर सिंथेसाइज देयर ओन फूड. फंजाई कैन नेवर बी कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक. दे ऑल आर ओनली एंड ओनली सेप्रोट्रॉफिक. वो अपना भोजन दूसरे जीवों से लेती है. मोस्ट ऑफ टाइम दे टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. क्लासिफिकेशन फाइकोमाइसीट्स, दे आर अटैच्ड विद प्लांट्स, and Basidiomycetes, Deuteromycetes and Ascomycetes. As the name indicates, Basidiomycetes they form their basidiospores and Ascomycetes form ascospores, and Deuteromycetes it is imperfect fungi because it reproduce only by the asexual mode of reproduction. But these Basidiomycetes, Ascomycetes and Phycomycetes, these three are different and this one is different. These are proper fungi, this is imperfect fungi. Imperfect fungi, इसे हम imperfect fungi कहते हैं. और ये जो तीनों हैं वो perfect fungi कही जा सकती है because उनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों तरह का है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. फंजाई का जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो स्पोर्स तैयार होते हैं, मेल स्पोर और फीमेल टाइप स्पोर्स, when both spores combine or join or fuse together they form a zygospore. zygote spore बनाते हैं that lead to the development of new fungi organism.
लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट नेक्स्ट टॉपिक। सो आपने अभी तक जो पढ़ा है इसके बारे में आप डिफरेंट टाइप्स की फंजाई के नेम्स, वो कहाँ पाई जाती है, उनसे कौन कौन सी डिसीज होती है, उसके बारे में ज़रूर चैप्टर में पढ़ें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर वीडियो में कमेंट करें और उसके बारे में पूछें। लाइकेंस की बात करते हैं। व्हाट आर लाइकेंस? लाइकेंस क्या होते हैं और उनका रोल क्या है? जैसा आपने पहले भी सुना होगा, लाइकेंस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। This algae and this is fungi. This is called phycobiome and this is called mycobiome. Why? So you have to keep remember about it. This algae can do photosynthesis. So due to photosynthesis, it prepare glucose. It provide food to the fungi and fungi absorb water and mineral due to its high feed. Fungi is always, आपने कभी देखा होगा कुछ अचार वगैरह होता है या कुछ खाने पीने की चीज़ें होती है या ब्रेड वगैरह होती है, अगर 2-3 दिन 4 दिन वो किसी डब्बे में पैक करके रख दी जाए तो उस पर फंगस डेवलप हो जाती है। और वैसे ही आप वीडियो फंगस के रिलेटेड आप RBS क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और उसके जो पोस्ट जहाँ पर इमेज अपलोड की जाती है वहाँ पर आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल में फंजाई से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड कई सारी वीडियो हैं, आप उन्हें भी देखिए। तो ये फंजाई प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल एंड एल्गी प्रोवाइड फूड टू द फंजाई। सो ड्यू टू देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन, ड्यू टू देयर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, बोथ कैन सर्वाइव इजीली एंड this relationship is helpful for both algae plus fungi. Yes, one more thing that you have to keep remember, lichens are good pollution indicator, good water pollution. Lichens never grow in polluted water. Only in pure water lichens develop easily. Let's learn about the virus. The non-cellular they have only protein plus DNA or RNA. Its DNA and RNA structure is inside and the whole structure is covered by the protein coat. Or sometimes you have seen this type of virus structure. So viruses are of different shape and size. Virus. So this is also a plant virus. This may be animal virus. Generally ये बुक में जो डायग्राम दिया गया है टबैको मोज़ेक वायरस है। इसमें ये हेड, कॉलर, शीट और ये टेल फाइबर्स हैं। यहाँ पर ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं इंटरनल पार्ट इज दिस इज RNA and these are the capsomere. Capsid is total cover. It is made up of capsomere. ये किससे बना होता है? कैप्सोमियर से बना हुआ होता है। कैप्सोमियर्स आर जनरली प्रोटीन पार्टिकल्स। जब BSc और MSc लेवल पर इस स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है तो इसका जो हेलिकल पैटर्न है वो फिक्स रेशियो में होता है 7 to 8, 8 to 15, 16 लाइक दैट। डिफरेंट है, आपके नीट लेवल पर उससे रिलेटेड पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वायरस क्या है? वायरस इज नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
We can say it as organism living or non-living. This is a base generally a question. Living, it can be called as living or non-living. इसको लिविंग कहें या नॉन लिविंग, तो दोनों ही कहना सही है. Whenever the virus is present inside the लिविंग सेल, किसी एक लिविंग सेल के अंदर है, लिविंग बॉडी के अंदर अगर वायरस एंट्री कर जाता है तो वो वायरस लिविंग कहला जाएगा. और अगर वायरस आउटसाइड एनवायरनमेंट में है, उस समय वो कोई एक्टिविटी नहीं करता, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है, दैट टाइम वायरस कैन बी कॉल्ड एज नॉन लिविंग. एक बार जब वायरस बॉडी में एंटर करता है, इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन के जरिए जब वायरस बॉडी के अंदर पहुंचता है, at that time first it take over the machinery, replication machinery, it release its DNA and that DNA integrated with the host genome. वो host genome, host जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोमल डीएनए है, उस डीएनए के अंदर वायरस अपना डीएनए इंटीग्रेट करता है. और जैसे सेल ग्रो करते हैं, वायरस का डीएनए भी ग्रो करता है और वो डिसीज को इंक्रीज करता है, यानी बीमारी का लेवल बढ़ता जाता है. जितना वायरस बढ़ेगा बॉडी में उतना डिसीज का लेवल बढ़ता है. वायरस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मेनली जितने भी प्लांट वायरस है मोस्टली आरएनए वायरस है. एनिमल वायरस जितने भी है मोस्टली डीएनए वायरस होते हैं. एक वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या सिर्फ आरएनए होगा. किसी भी वायरस के अंदर आरएनए और डीएनए एक साथ प्रेजेंट नहीं होते और ना ही पाए जाते हैं. जनरली जितने भी वायरस स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, या फिर डीएनए अगर प्रेजेंट है तो वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए की फॉर्म में है. वायरस बहुत सारी डिसीज करते हैं. आपको कुछ बैक्टीरियल डिसीज उनके बैक्टीरियल नेम, कुछ वायरस डिसीज उनके वायरस नेम भी आपको जरूर याद करना है. अगर आपका कोई डाउटफुल क्वेश्चन होता है उसके लिए आप जरूर कमेंट में लिखें. लेट्स लर्न अबाउट द विरोइड. आपने विरोइड के बारे में सुना होगा. ऑर्गेनिज्म बड़ा है लेकिन उससे छोटे उसके सेल्स हैं. उन सेल से भी छोटा बैक्टीरियल सेल है और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो माइकोप्लाज्मा है, 0.3 माइक्रोमीटर है. लेकिन बैक्टीरिया से भी छोटा जो है वो वायरस है और वायरस से भी छोटा जो छोटा है वो विरोइड होता है. तो विरोइड के बारे में जानते हैं. इट इज जनरली इन्फेक्टिशियस फ्लूइड. ये क्या है? इन्फेक्टिशियस फ्लूइड होता है. इट कैन बी आइदर ओनली एज ए डीएनए, जनरली इट इज आरएनए, which cause potato spindle disease, and there are some other diseases which also caused by the virions. virions अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, वो अलग अलग डिसीज करते हैं. virions में प्रोटीन्स नहीं होती, ये भी नॉन सेलुलर होते हैं. ये आपको ध्यान रखना होगा. एंड वन मोर थिंग इज prions. Infectious proteins, ऐसी प्रोटीन्स जो इन्फेक्टिशियस हैं, यानी अगर गलती से बॉडी में चली गई तो बॉडी का जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है उसे डिस्टर्ब करती हैं. जो नॉर्मल एंजाइम्स है, नॉर्मल जो हार्मोनल लेवल है उसे डिस्टर्ब करती हैं. उनसे रिलेटेड उन कई सारी डिसीजेस भी होती हैं. एक कॉमन एग्जांपल है एल्जाइमर. एल्जाइमर ब्रेन से जुड़ी हुई डिसीज है, जो कि जनरली देखा गया है कि जब एक इंसान 50 या 60 या 60 से ऊपर एज का होता है तो उसकी याददाश्त जाने लगती है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेवल पर भूलने लगता है. उस स्टेज को एल्जाइमर कहा जाता है. और एल्जाइमर का जो मेन कारण है वो prions है, ड्यू टू prions, and this is called prions, or sometimes it is called abnormally folded proteins.
एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। जो बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 9th 10th में भी या 11th 12th में या उससे ऊपर लेवल बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है, तो आपने बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल स्ट्रक्चर, टर्सरी लेवल और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर लेवल। ये चारों स्ट्रक्चर्स में जो टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स है प्रोटीन का, वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, उसी से एंजाइम्स बनते हैं और उससे बहुत सारे फंक्शनल रोल प्ले होते हैं। अगर वो फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन प्रॉपर ना हो तो वो एबनॉर्मल कहलाती है और वो बहुत सारे डिसीज कर सकती है। आज की क्लास यहीं तक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप अपने कमेंट्स लिखिए, एक शॉर्ट रिवीजन था, आपके जो भी कोई क्वेश्चंस होते हैं आई विल डेफिनेटली आंसर। थैंक यू।